Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this video lecture, I am going to discuss with you another important famous play that is by Mahesh Dattani and name of that play is Final Solutions. Friends, one can relate this particular play with Manik Bandyopadhyay's short story that too resemble the same title as well as same theme. So, friends, when I was in Delhi University, I had a subject which is named as partition literature, and in that course we had a short story that is final solutions. So I was able to relate so many things with this particular play as well as that particular short story which is by Manik Bandyopadhyay. And both this play as well as that particular short story resemble the same title as well as same theme. So we can one can do intertextuality between these things, between Manik Bandyopadhyay's short story as well as this particular play which is by Mahesh Dattani. And now friends, I want to tell you what this play is all about. This particular play is set reflects communal tensions between Hindus and Muslims. This play takes us back in the times before independence. You know, Muhammad Jinnah demanded separation of Muslim community and formation of a separate nation, that is Pakistan. And what eventually happens after independence, so it reflects, this particular play reflects back the sentiments of both communities, that is Hindus and Muslims, their intense pain, how in the span of one day everything got shattered. The nation which was once united now got partitioned into two parts. This play also talks about the consequences, what had happened even after the partition. The people were at that time homeless, lack identity, face economic crisis, and as well as adjustment problems. They are not able to adjust in each other's nations. And events in this particular play, events are also talked before partition that left upon people a long lasting imprints with which they should never heal themselves. It shattered them inside out, it wounds them badly, shaken them to the core. They are living with such bad memories which can never be erased from them, their mind, even if they try hard to remove. So this is what I have felt about this after reading this particular play. नाउ फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं. द प्ले फाइनल सॉल्यूशंस वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1993. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये जो प्ले है इसे सबसे पहले जो है परफॉर्म किया गया था 1993 में. दिस प्ले इज़ अबाउट द कॉम्युनल इश्यूज़ ऑफ इंडिया. येस, जो कॉम्युनल इश्यूज़ है हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में, सो ये प्ले जो है कुछ उस बारे में है. Then, people of India and Pakistan were divided before the independence of India. यानी इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले जो है पाकिस्तान और साथ ही साथ इंडिया के लोगों को जो है डिवाइड कर दिया गया था. एंड जो है, तो बेसिकली क्या हुआ था उस टाइम पर कि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो सारी जो है पाकिस्तान चली गई थी. एंड जितने भी हिंदूज़ मेजॉरिटी थी हिंदूज़ की, वो सारे इंडिया में रहने लगे थे. कुछ इस टाइप का जो है डिवीज़न हुआ था उस टाइम पर. द डिवीज़न ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज नॉट ओनली द जोग्राफिकल डिवीज़न, कि बताया जाता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीज़न हुआ था वो जोग्राफिकल डिवीज़न ही नहीं था, बट ऑल्सो हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स वर फोर्स टू गो टू देयर रिस्पेक्टिव लैंड्स. एंड बताया गया है कि जो हिंदूज़ और मुस्लिम्स थे उन्हें जो है अपनी यानी जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग किया करते थे, तो उन्हें जो है फोर्स मजबूरन जो है अपने रिस्पेक्टिव लैंड्स में जाना पड़ा था. हिंदूज़ टू इंडिया, एंड हिंदूज़ को जो है इंडिया में भेज दिया गया था, एंड जितने भी मुस्लिम्स थे उन्हें जो है पाकिस्तान में भेज दिया गया था. देन द प्ले फाइनल सॉल्यूशन इज़ अबाउट द कल्चरल सुप्रीमेसी ऑफ हाउ हिंदू सफ़र. एंड ये प्ले जो है बेसिकली किस बारे में जो है रिफ्लेक्ट करता है, कल्चरल सुप्रीमेसी के बारे में, कि मतलब हिंदूज़ जो है वो सारे इंडिया में रहेंगे, एंड साथ ही साथ जो है जितने भी मुस्लिम्स अगर इंडिया में रह रहे हैं तो उन्हें जो है बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था. ऑफ हाउ हिंदू सफ़र एट द हैंड्स ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी, कि किस तरीके से जो है हिंदूज़ को मुस्लिम मेजॉरिटी द्वारा जो है एक्सप्लॉइट किया गया था उस टाइम पर. लाइक द करेक्टर ऑफ हार्दिका और दक्षा इन हुसैनाबाद. एंड इसमें जो है एक एविडेंस के साथ जो है ये पूरी स्टेटमेंट जो है
बताई गई है, एविडेंस दिया गया है कि किस तरीके से एक करेक्टर जो थी जिसका नाम हार्दिका, एंड इस पर्टिकुलर करेक्टर का नाम जो है पहले हार्दिका होने से पहले जो है दक्षा होता है। तो ये जो है हुसैनाबाद में रहती थी, एंड किस तरीके से जो है इसका जो है एक्सप्लॉयटेशन हुआ था मुस्लिम मेजॉरिटी द्वारा। देन एंड ठीक जिस तरीके से मुस्लिम मेजॉरिटी जो है हिंदूज़ को, जो कि माइनॉरिटी थे इनके लैंड में, तो किस तरीके से जो है मुस्लिम मेजॉरिटी हिंदूज़ को एक्सप्लॉइट करी थी, ठीक उसी तरीके से जो है मुस्लिम्स भी जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, ठीक उसी तरीके से जो इंडियन कम्युनिटी है वो भी मुस्लिम्स को, यानी माइनॉरिटी मुस्लिम्स को किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही थी। तो ये जो प्ले है ये पर्टिकुलर इस बारे में है। एंड हाउ मुस्लिम्स लाइक जावेद सफ़र इन द सेटअप ऑफ द मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी। एंड इस प्ले में जो है एक जावेद करेक्टर है, उसको जो है इस प्ले में दिखाया गया है कि वो किस तरीके से जो है एक्सप्लॉइट हो रहा था हिंदू कम्युनिटी द्वारा। It disturbs the normal social life and also is hindrance for the national progress. Yes, ये जितनी भी communal tension होती है ये हमारी social life को जो है disturb कर देती है और कहीं ना कहीं nation की progress में एक तरीके से जो है hindrance है, यानी रुकावट prove होती है। देन यंग गर्ल दक्षा, इसमें एक लड़की है जिसका नाम है दक्षा, एंड बाद में यही पर्टिकुलर करेक्टर जब ये अपनी ओल्ड एज में पहुंच जाती है तो ये जो है अपना नाम दक्षा से जो है हार्दिका रख लेती है, यानी अपना नाम ट्रांसफॉर्म कर लेती है। हु विल बी रीडिंग द डायरी विच शी रोट लॉन्ग बैक रिलेटेड टू द कम्युनल रायट, कि ये जो यंग गर्ल दक्षा होती है ये जो है एक डायरी पढ़ रही होती है, जब मतलब कम्युनल राइट चल रहा था उस टाइम पर जो है इसने ये डायरी लिखी थी। एंड इमीडिएटली द यंग गर्ल चेंजेस इनटू द ओल्ड हार्दिका। एंड क्या होता है जब जिस टाइम पर ये डायरी पढ़ रही होती है तो यही लड़की जो है अपने आप को हार्दिका में बदल लेती है, क्योंकि यही यंग गर्ल जो है जिस टाइम पर डायरी पढ़ रही होती है ये बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है, एंड इसी पर्टिकुलर करेक्टर ने जो है अपना नाम दक्षा से हार्दिका रख लिया है। Then, but there is no much difference between olden days riots and the present days riots. And अब ये पता चलता है कि जिस टाइम पर दक्षा जो है यंग हुआ करती थी तो अब जो है कोई डिफरेंस नहीं रहा है। जिस टाइम पर दक्षा जब छोटी थी तब जो है उस टाइम पर भी रायट्स जो राइट्स चल रहे थे और आज के टाइम के राइट्स भी है जो चल रहे हैं वो बिल्कुल सिमिलर है। एज बोथ हैव द सेम ब्लड शेड सेम स्ट्रेंथ ऑफ वायलेंस, कि दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में जो है ठीक जिस तरीके से पहले जो लड़ाइयाँ चल रही होती थी ठीक आज भी उसी तरीके से वैसी ही लड़ाइयाँ चल रही है और उसी तरीके की जो है वायलेंस की स्ट्रेंथ है। देन दक्षा क्लोजेज हर डायरी, अब क्या होता है दक्षा अपनी डायरी को जो है क्लोज कर देती है एंड देन हार्दिका अपीयर्स ऑन द स्टेज। एंड उस टाइम क्या होता है ये एक पर्टिकुलर प्ले है, तो दक्षा जिस टाइम छोटी होती है तो उसका नाम जो है दक्षा होता है, जैसे ही वो बूढ़ी हो जाती है तो अपना नाम ट्रांसफॉर्म कर लेती है एंड यही पर्टिकुलर करेक्टर जो है अपनी ओल्ड एज में हार्दिका बन जाती है। सो दक्षा क्लोजेज हर डायरी एंड देन हार्दिका अपीयर्स ऑन द स्टेज। देन इन द लिविंग रूम ऑफ द गांधीज, अरुणा रमनिक गांधीज वाइफ, कि ये जो दक्षा की जो फैमिली होती है सो ये गांधी फैमिली होती है, यानी गांधी इनकी कास्ट होती है। तो अरुणा जो है ये रमनिक गांधी की वाइफ होती है एंड रमनिक जो है वो दक्षा का बेटा होता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये जो रमनिक है रमनिक गांधी ये दक्षा या फिर हार्दिका का बेटा होता है एंड रमनिक गांधी की जो वाइफ है वो अरुणा होती है। एंटर्स विद हर डॉटर स्मिता, एंड रमनिक क्या करता है अपनी बेटी के साथ जो है रूम में एंटर कर लेता है। अरुणा इज़ अ गॉड फियरिंग वुमेन, कि अरुणा को जो है भगवान से बहुत डर लगता है एंड ये जो है हर तरीके के रिचुअल को फॉलो करती है क्योंकि इसे भगवान से डर लगता है। बीइंग अ हिंदू, क्योंकि ये हिंदू भी है। जावेद एंड बॉबी ऑन द अदर साइड रिप्रेजेंट्स मुस्लिम कम्युनिटी। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि जावेद और बॉबी इस पर्टिकुलर प्ले में जो ये दो करेक्टर है ये मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं।
देन द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश। बताया जाता है कि ये जो डिवाइड रूल की जो पॉलिसी है ये किसने अडॉप्ट की थी? ब्रिटिशर्स ने। और एंड वो भी किस टाइम पर? कॉलोनियल रूल के टाइम पर। ड्यू टू दैट देयर अरोज मैनी डिफरेंसेस बिटवीन द कम्युनिटीज़, एंड इसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से जो है, इस पर्टिकुलर पॉलिसी की वजह से जो है बहुत सारे कम्युनिटीज़ के बीच में डिफरेंसेस आ गए, मतभेद। द रिजल्ट वॉज कॉम्युनल हेट्रेड, एंड इसकी वजह से क्या हुआ? इस पॉलिसी की वजह से क्या हुआ? कम्युनिटीज़ के बीच में जो है एक दूसरे के बीच में नफरत पैदा हो गई। एंड मैनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू डिफरेंट प्लेसेस, एंड अब क्या होने लगा कि इसी पॉलिसी की वजह से जो है ये जितनी भी कम्युनिटीज़ थी ये जो है अपने अपनी जगहों पर चली गई, यानी कि हिंदूज़ जो है वो इंडिया में रहने लगे, मुस्लिम्स जो है पाकिस्तान चले गए, विच वॉज कम्प्लीटली न्यू फॉर देम। एंड जहाँ पर वो शिफ्ट होने लगे थे तो वो जगह जो है उनके लिए अब नई बन चुकी थी। हिंदूज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, हिंदूज़ कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान से इंडिया में चले गए थे। एंड मुस्लिम्स फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। दिस माइग्रेशन वॉज फोर्सफुल, यानी ये जो माइग्रेशन थी ये मजबूरन थी, उन्हें जो है मजबूर किया गया था कि उनको जो है उनके रिस्पेक्टिव लैंड्स में जाना पड़ेगा। इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स पीपल वर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द शॉकिंग इवेंट्स। एंड बताया जाता है कि इतने साल हो जाने के बाद भी जो है जो पार्टीशन की जो बुरी मेमोरीज थी वो इनके माइंड में जो है इतनी बुरी तरीके से इंस्क्राइब्ड हो गई है। तो ये एक तरीके का जो है शॉकिंग इवेंट है जिनसे जिन्हें जो है कहने का मतलब है कि इन मेमोरीज, इन शॉकिंग इवेंट्स या फिर मेमोरीज से निकल पाना जो है इनके लिए बहुत मुश्किल है। इन मेमोरीज को जो है ये कभी भी इरेज नहीं कर सकते, क्योंकि इन मेमोरीज ने जो है इनके दिल में इतने ज़्यादा गहरे घाव छोड़े हैं। देन even after independence people of both the nation were prejudiced by the past communal riots, कि इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है देखा जाता है कि इन दोनों ही नेशंस में उसी तरीके से जो है आज भी नफरत है। देन द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड कन्फ्यूजन रोज, एंड बताया जाता है कि अब जो है हिंदूज़ जो कि अभी भी पाकिस्तान में रह रहे थे तो वो जो है अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे थे, या फिर मुस्लिम्स जो इंडिया में रह रहे थे उन्हें भी जो है एक तरीके से जो है इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, वो जो है कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, और साथ ही साथ जो है एक कन्फ्यूजन जैसी सिचुएशन भी जो है अब जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। दिस सेटल्ड इन अ न्यू लैंड एंड प्रॉब्लम्स इंक्रीज्ड, कि अब ये कहाँ सेटल होने लगे? एक नए लैंड में सेटल होने लगे, एंड उसके बाद जो है प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती चली गई। द बर्थ ऑफ रीजनलिज्म, इससे क्या होने लगा कि रीजनलिज्म का बर्थ हुआ, यानी रीजन्स जो है अब बनने लगे कि हिंदू जो है इस पर्टिकुलर रीजन में ही रह सकता है, मुस्लिम जो है इस पर्टिकुलर रीजन में रह सकता है। डिस्प्यूट्स इन नेशनल आइडेंटिटीज़, अब जो है नेशनल आइडेंटिटीज़ में भी जो है अब डिस्प्यूट्स देखे जाने लगे। एंड डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, अब ह्यूमन वैल्यूज़ बचे ही नहीं थे, क्योंकि इतना सारा जो है लोग जो है एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे थे, एंड ब्लडशेड हो रहा था, वायलेंस हो रहा था, लोग एक दूसरे को गलत बोल रहे थे, एक दूसरे की कम्युनिटी को जो है मैनिपुलेट कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ थे। दीज डिसऑर्डर्स लेड टू लिंग्विस्टिक, एथनिक एंड कास्ट आइडेंटिटीज। यस, इनकी वजह से क्या हुआ, और भी बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होने लगी, जैसे कि लिंग्विस्टिक, एथनिक, कास्ट आइडेंटिटीज़। महेश दत्तानी वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर फाइनल सॉल्यूशन। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इस पर्टिकुलर वर्क के लिए जो है महेश दत्तानी जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो मिला था 1998 में। द प्ले ओपन्स विद दक्षा रीडिंग फ्रॉम हर डायरी, कि अब जो है जिस टाइम पर दक्षा ये डायरी को रीड कर रही है वो जो है अपनी यंग एज में है, एंड इसीलिए जो है वो अपनी डायरी को रीड कर रही है। देन द यंग गर्ल इमीजिएटली चेंजेस इनटू द ओल्ड हार्दिका। इस पर्टिकुलर दक्षा करेक्टर ने जो है डायरी लिखी थी जब इसके टाइम पर कम्युनल राइट्स हो रहे थे, एंड अब यही पर्टिकुलर गर्ल जो है जब बहुत टाइम बाद इस पर्टिकुलर डायरी को रीड करती है तब पता चलता है कि ये जो है अपनी ओल्ड एज में है, एंड इसका नाम जो है दक्षा से हार्दिका हो गया है। दक्षा इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ द गांधीज। बताया जाता है ये जो पर्टिकुलर करेक्टर जो डायरी रीड कर रही है दक्षा, जो कि यंग एज में थी अपनी, अब जो है इसका करेक्टर जो है ट्रांसफॉर्म हो गया है, ये ओल्ड हो चुकी है, एंड इसका नाम हार्दिका हो गया है। एंड ये कौन है? ये एक तरीके से ग्रैंड मदर है गांधी फैमिली की। शी क्लोजेज हर डायरी, अब ये अपनी डायरी बंद कर देती है। देन अपीयर्स एज हार्दिका ऑन द स्टेज, एंड अब जो है ये स्टेज में जो है किस तरीके से अपीयर होती है? हार्दिका बनकर। शी फील्स
थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। अब जो है इसे ऐसा लगता है कि अब जो है चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बदलने लगी है। इन हर फैमिली रमनिक गांधी हर सन, बताया जाता है कि जो दक्षा का बेटा है रमनिक गांधी, और जो रमनिक का बेटा है, और साथ ही साथ जो है अरुणा जो कि दक्षा की डॉटर इन लॉ है, और साथ ही साथ जो अरुणा की बेटी यानी दक्षा की ग्रैंड डॉटर, ये सारे स्मृता जो है इस फैमिली में रहते हैं, गांधी फैमिली में। दक्षा इज रिप्रेजेंटेड एज अ 15-year-old न्यूली मैरिड यंग गर्ल एंड राइटिंग हर डायरी दिस मे बी कंसिडर्ड एज द पास्ट। जब ये डायरी लिख रही थी, यानी ये पर्टिकुलर करेक्टर जो है अपना डायरी लिख रही थी, तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो इसके पास्ट को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि पास्ट में जो है ये अपनी कॉम्युनल इवेंट्स, यानी जिस टाइम पर, यानी इस पर्टिकुलर दक्षा जो करेक्टर थी, इसके टाइम पर जो है रायोट्स चल रहे थे, तो वही सारे इवेंट्स जो है वो अपने डायरी में रिकॉर्ड करती है। एंड समटाइम्स एज स्मिताज ग्रैंड मदर, एंड कभी एंड फिर जो है कुछ टाइम बाद देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर करेक्टर जो है अब बूढ़ी हो गई है, तो ये किस तरीके से अपीयर हो रही है, स्मिता की ग्रैंड मदर बन चुकी है अपनी लेट 60s में, एंड प्रेजेंट में ये जो है स्मिता की ग्रैंड मदर है। रमनिक एंड अरुणा ऑल्सो कम अंडर द प्रेजेंट, एंड जो ये रमनिक है और अरुणा है, ये जो है ये प्रेजेंट में आते हैं, यानी ये दोनों करेक्टर जो है ये प्रेजेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। बट स्मिता, बॉबी एंड जावेद में भी कंसीडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फ्यूचर, एंड बताया जाता है स्मिता जो कि रमनिक और अरुणा की बेटी है, स्मिता, और साथ ही साथ बॉबी और जावेद जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। देन दक्षा ऑलवेज टेल्स स्मिता दैट दोज पीपल आर ऑल डेमोन्स, कि ये जो पर्टिकुलर करेक्टर है जो कि अब स्मिता की दादी बन गई है, तो स्मिता को जो है ये दक्षा बताती है कि ये सारे लोग जो है डेमन्स हैं। देन जो दक्षा करेक्टर है अपनी ग्रैंड डॉटर से कहती है कि ये सारे मुस्लिम्स जो है वो डेमन्स है, यानी राक्षस है, एंड यही मुस्लिम्स जो है रमनिक को भी पसंद नहीं है। देन कल्चरल हेजेमनी, यहाँ पर क्या देखा गया है, कल्चरल हेजेमनी को देखा गया है, एंड ये किसके द्वारा नोटिस की गई है, कैन बी नोटिस एज दोज हु आर इन मेजॉरिटी रूल ओवर द माइनॉरिटीज़, की इस पर्टिकुलर प्ले के अंदर जो है कल्चरल हेजेमनी को नोटिस किया गया है, एंड इस कल्चरल हेजेमनी को कौन प्रैक्टिस कर रहा है, मेजॉरिटी लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, और किसके ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर। एट प्रेजेंट बॉबी एंड जावेद आर द विक्टिम्स, एंड बताया गया है कि ये जो बॉबी एंड जावेद जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये जो है विक्टिम है, एंड जो है सफरर्स भी है अंडर हिंदू, as they are Muslims that is in the present. And when Hardika reads the diary in the past, in the communal riots, they were minorities. And बताया गया है कि जब हार्दिका अपनी डायरी को रीड कर रही होती है पास्ट में, इन द पास्ट इन द कम्युनल राइट्स देवर माइनॉरिटीज़, कि उस टाइम पर जब हार्दिका अपनी डायरी को रीड करती है कम्युनल राइट्स के बीच में, जब कम्युनल राइट्स चल रहे होते हैं, तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि हार्दिका जो थी, जहाँ वो रहती थी हुसैनाबाद में, तो हार्दिका जो है वहाँ की माइनॉरिटी थी, एंड हर फादर बर्न्ड अ मुस्लिम शॉप, एंड बताया जाता है कि हार्दिका के फादर ने जो है मुस्लिम शॉप को जला दिया था। जावेद इज़ अ यंग मैन, जावेद कौन है, यंग मैन है। अब वो क्या होता है, टेररिस्ट बन जाता है, एंड उसे जो है एक्सप्लॉइट करते हैं पॉलिटिशियंस, और वो भी जिहाद के नाम पर। ही सेंट टू हिंदू मोहल्ला, एंड उसे कहाँ भेज दिया जाता है, हिंदू मोहल्ला में, वेयर रथ यात्रा इज टेकिंग प्लेस, जहाँ पर जो है रथ यात्रा जो है चल रही होती है। ही इज़ इन द मॉब एंड ही इज़ सो ओवरवेल्म्ड दैट ही थ्रोज द फर्स्ट स्टोन ऑन द रथ, कि बताया जाता है कि वो जो है उन लोगों के बीच में, कॉमन लोगों के बीच में जो है इतना उसे गुस्सा आ जाता है कि वो क्या करता है, रथ के ऊपर जो है पत्थर फेंक देता है, एंड क्या करता है वहाँ पर जो है क्योस जो है क्रिएट कर देता है, एंडिंग अप इन द किलिंग ऑफ द पुजारी, जिसकी वजह से जब वो पत्थर फेंक देता है तो क्या होता है, एक पुजारी जी की डेथ हो जाती है, एंड द क्रैशिंग डाउन ऑफ द रथ, बॉबी हु इज़ क्लोज फ्रेंड टू रेस्क्यूज हिम, एंड क्या होता है कि जब जो है ये पर्टिकुलर करेक्टर जो है जावेद पूरे रथ को जो है क्रैश कर देता है, बॉबी जो है उसे रेस्क्यू करने आता है जावेद को फ्रॉम द वायलेंट मॉब एंड टेक्स हिम टू रमनिक हाउस, एंड ये बॉबी क्या करता है, जावेद को रमनिक के घर पर ले जाता है ताकि जो है उसे एक दिन का जो है, एक रात के लिए शेल्टर मिल जाए। देन Dattani uses for this reason
थ्री जनरेशन्स कि इस पर्टिकुलर प्ले में जो है दिखाया गया है कि इस पर्टिकुलर प्ले में जो है थ्री जनरेशन्स को दिखाया गया है। सबसे पहला ग्रैंड मदर को, ग्रैंड मदर यहाँ पर जो है दक्षा है या फिर हार्दिका है, देन बेटा जो है रमनिक है, एंड द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्मिता को और जावेद और बॉबी को, जो कि फ्यूचर जनरेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये जो है मिडिल क्लास लोग हैं जो कि गुजराती बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड इनके एटीट्यूड्स को जो है एग्जामाइन किया गया है कि किस तरीके से ये जो है रिलीजन को जो है टॉलरेट करते हैं, मुस्लिम रिलीजन को, और साथ ही साथ जो है इनटॉलरेंस भी दिखाई गई है ग्रैंड मदर के थ्रू, ग्रैंड मदर के कैरेक्टर के थ्रू, एटीट्यूड के थ्रू। हार्दिका द ग्रैंड मदर हु इज पोजेस्ड विद हर फादर्स मर्डर। बताया जाता है कि जो हार्दिका, जो कि अब ग्रैंड मदर बन चुकी है स्मिता की, एंड ये जो है बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो है कंटेम्पलेट कर रही है कि इसकी फादर की डेथ का कारण जो है मुस्लिम्स थे ड्यूरिंग द पार्टीशन क्योस एंड देयर बिट्रायल बाय। एंड हार्दिका जो है वो इस चीज़ को भी जो है याद करती है कि किस तरीके से उसकी मुस्लिम फ्रेंड जिसका नाम जरीन था, उसने इस पर्टिकुलर हार्दिका को जो है बिट्रे किया, यानी धोखा देने की कोशिश की। हर सन रमनिक गांधी द सेकेंड जनरेशन ऑफ द फैमिली, एंड जो उनका बेटा है रमनिक गांधी, वो सेकेंड जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, इज ट्रबल्ड बाय द अवेयरनेस दैट हिज प्रॉस्पेरिटी इज फाउंड ऑन अ शॉप ऑफ जरीन्स फादर विच वॉज डैमेज बाय हिज किन्समैन। बताया जाता है कि जो उसकी प्रॉस्पेरिटी थी इज़ फाउंडेड ऑन अ शॉप ऑफ जरीन्स फादर, यानी वो जो है किस तरीके से जो है प्रॉस्पर करता चला गया एक शॉप के थ्रू जो कि जरीन के फादर की थी, एंड उसे जो है डैमेज कर दिया गया रमनिक गांधी के ही किन्समैन यानी फैमिली मेम्बर्स ने। हार्दिका डॉटर इन लॉ, हार्दिका कौन है? डॉटर इन लॉ, हार्दिकाज डॉटर इन लॉ, जिसका नाम है अरुणा, लिव्स बाय द स्ट्रिक्ट कोड ऑफ द हिंदू स्क्रिप्चर्स। एंड ये जो है किस तरीके से मतलब रहती है, यानी हिंदू स्क्रिप्चर्स के स्ट्रिक्ट कोड को जो है फॉलो करती है। एंड हार्दिका की ग्रैंड डॉटर का नाम है स्मिता द यंगेस्ट जनरेशन, ये यंगेस्ट जनरेशन से बिलोंग करती है। फाइंड्स शी कैन नॉट अलाउ हर सेल्फ अ रिलेशनशिप, एंड वो क्या करती है कि वो जो है वो अपने मन को जो है इस तरीके से मना लेती है कि वो जो है किसी भी मुस्लिम बॉय के साथ जो है रिलेशन नहीं मेंटेन करेगी। द एंशियस calm in the family is bothered when two Muslim boys बब्बन एंड जावेद, कि अब जो है ये जो फैमिली का जो शांत एटमॉस्फेयर था वो जो है कैसे ख़राब हुआ, वो कुछ इस तरीके से ख़राब हुआ जब दो मुस्लिम लड़के जिनका नाम होता है बब्बन एंड जावेद, ये जब इनके घर में जो है शेल्टर मांगने आते हैं, वेरी मच सीक प्रोटेक्शन इन देयर होम ऑन बीइंग चेस्ड बाय अ वायलेंट हिंदू क्राउड। कि अब क्या होता है कि बब्बन और जावेद को जो है हिंदू क्राउड जो है इनका पीछा कर रहा होता है, एंड जिसकी वजह से जो है ये बब्बन एंड जावेद जो है गांधी फैमिली से शेल्टर मांगने आते हैं एक रात के लिए। देन बब्बन एज अ मॉडरेट, बब्बन को जो है मॉडरेट रिप्रेजेंट किया गया है इस प्ले में, और जावेद को एग्रेसिव और वायलेंट। एंड ओनली पॉसिबल फाइनल सॉल्यूशन टू द वेक्स्ड इशू, एंड अब जो है फाइनल सॉल्यूशन भी बताया गया है कि इस इशू का जो फाइनल सॉल्यूशन है वो यही निकल कर आ सकता है कि हमें जो है चीज़ों को टॉलरेट करते रहना चाहिए एंड फॉरगिव करते रहना चाहिए। हमें जो है चीज़ों की गांठ नहीं बांध लेनी चाहिए, एंड उन पर जो है हमें लड़ते नहीं रहना चाहिए, हमें जो है चीज़ों को टॉलरेट करते रहना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए। द कॉमन पीपल हु लिव टुगेदर फॉर ईयर्स, अब बताया जाता है इस प्ले के थ्रू कि जो लोग जो कॉमन बनकर रह रहे थे, यानी हिंदू मुस्लिम बनकर नहीं, कॉमन बनकर रह रहे थे बहुत सालों तक, एट द मूवमेंट ऑफ रायट। अब क्या होता है जब मूवमेंट यानी रायट के मूवमेंट में सडनली सीजेस टू रिकॉग्नाइज ईच अदर, अब जो है अब इतने ज़्यादा एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो गए हैं, ये दोनों जो है एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने से, पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं, एंड एक दूसरे के एनिमी बन गए हैं, वो भी रिलीजन के बेसिस पे। पीपल बिलोंगिंग टू ऑल द सेक्शंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, बताया जाता है कि जो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं वो शायद ही इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक रिलीजन का जो है रियल पर्पस क्या होता है। रिलीजन का रियल पर्पस क्या होता है, हमें जो है पीसफुल रिलेशंस जो है हर किसी से मेंटेन करके रखते रहने चाहिए, हार्मनी के साथ, यानी सबके साथ जो है मिलजुल कर रहना चाहिए। दे आर ऑफन सीन फाइटिंग विदाउट एनी कॉज और रीजनिंग, बल्कि होता क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं बजाय किसी कॉज के, बिना किसी रीज़न के, और वो भी फ्लिम्जी ग्राउंड पर।
देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है. एंड फ्रेंड्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.